Dear students, today we are going to start trigonometric identities, exercise number 8.4. Now, see question number 5. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. Means you have to take all angles theta, A, B or other variables as acute angles. Now see first one, prove that cosec theta minus cot theta whole square equals 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. So here you have to prove that square of cosec theta minus cot theta equals 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. To further proof, we should take LHS, that is left hand side. So its left hand side is equal to cosec theta minus cot theta whole square. We need to prove in terms of cos theta. You see that here RHS in terms of cos of theta. So we should write cosec theta and cot theta in terms of sin theta and cos theta only. Because you know very well cosec theta is 1 upon sin theta and cot theta is cos theta upon sin theta. You can see this formula in my formula list in the previous videos. So this is equal to 1 upon sin theta minus cos theta upon sin theta whole square. Now denominators are same, that is sin theta, and here whole square term is given. So 1 minus cos theta upon sin theta the whole square. So we should write it separately as numerator and denominator, 1 minus cos theta whole square upon sin square theta. जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आइडेंटिटी फार्मूले में फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये गिवन है फॉर्मूला लिस्ट में. तो हमारे फॉर्मूला लिस्ट में अगर देखोगे तो फॉर्मूला नंबर 6 पर आ जाएगा. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम दिस आइडेंटिटी. साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो वी सब्स्टिट्यूट हियर इन द डिनोमिनेटर. So it is equal to 1 minus cos theta whole square upon 1 minus cos square theta. Now, numerator can be written as 1 minus cos theta into 1 minus cos theta because of whole square, and denominator, this is square of 1 and this is square of cos theta. So using a square minus b square formula, we get 1 minus cos theta into 1 plus cos of theta. Here 1 minus cos theta get cancelled one time. So this is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, and you can say it is right hand side of the question. So therefore LHS equal to RHS, hence proved this question. Now see question number 2. Cos of A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos of A equals 2 sec A. क्या प्रूफ करना है? 2 into sec A. So this is LHS. So for the proof, taking LHS, so LHS equals cos of A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos of A. Here cos A into cos A becomes cos square A plus 1 plus sin A into 1 plus sin A becomes 1 plus sin A whole square upon denominator into denominator, that is 1 plus sin A into cos of A. Now cos square A as it is plus using here a plus b whole square formula, and this is a square plus 2ab plus b square, that is square of 1 is 1 plus 2 into 1 into sin A, that is 2 sin A plus sin A whole square, that is sin square A, upon same denominator, that is 1 plus sin A into cos of A. Dear student, you know very well cos square A plus sin square A becomes 1, and this plus 1 as it is plus 2 sin A as it is upon 1 plus sin A into cos of A. क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? तो आगे चलते हैं. अब देखो न्यूमरेटर में क्या करना है. 1 plus 1 that is 2 plus 2 sin A as it is divide by 1 plus sin A into cos of A. Now taking 2 common,
from the numerator. So this is equal to 2 multiplied by 1 plus sin A upon 1 plus sin A into cos of A equals 2 upon sin A. अभी 2 upon sin A यहाँ पर आ गया, but you have to prove that it is equal to 2 cosec A. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखो, सॉरी 2 upon cos A, here it is 2 upon cos of A. Okay, dear student, just a correction here. It is equal to, here 1 plus sin A, 1 plus sin A get cancelled. So we get remaining term 2 upon cos A. That is, it is equal to 2 upon cos A, and it can be written as 2 multiplied by 1 upon cos A. And you know very well 1 upon cos A is sec A. So it is equal to 2 sec A, which is equal to RHS, that is right hand side. Therefore, LHS equal to RHS. You can check it once again what you have to prove. See this, cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A equals 2 sec A. Now it is 2 upon cos A becomes 2 into sec A, which is equal to right hand side. So question number 2 completed now. All these questions are based on identities and the formula related to the trigonometric ratios. And all these questions are very important for the board exams as well as competitive exams. Now see question number 3. Prove that tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equals 1 plus sec theta into cosec theta. So tan theta upon 1 minus cot plus cot theta upon 1 minus tan equals 1 plus sec theta into cosec theta. So for the proof, taking left hand side, it is equal to tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta. You want to prove in terms of sec theta and cosec theta, so it is confirmed that we should convert tan and cot in terms of sin and cos. We should convert tan theta and cot theta in terms of sin theta and cos theta. So you can see, you can refer the formula list in the previous videos, which is already given and uploaded. तो सभी स्टूडेंट को ये सभी क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हमारे फॉर्मूला लिस्ट को जरूर रेफर करना चाहिए, और फॉर्मूला लिस्ट एक बार रिवाइज करने के बाद ही ये क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे. Now see this numerator tan theta. So tan theta is equal to sin theta upon cos theta. This is very simple formula. The whole divided by 1 minus cot theta. So 1 as it is, and cot theta is cos theta upon sin theta plus cot theta in the numerator. So we should write here cos theta upon sin theta entire upon 1 minus here tan theta, but tan theta is sin theta upon cos theta. Okay. So its numerator, अब यहाँ पर देखो sin theta upon cos theta here as it is sin theta upon cos theta, but in the denominator here sin theta into 1 becomes sin theta minus cos theta upon sin theta. So taking its reciprocal and it will be multiplied. जहाँ पर divide है वहाँ क्या हो जाएगा multiply, क्योंकि अब हमने यहाँ पर इसका reciprocal कर दिया by rule. तो this will be, अब देखो sin theta into 1 minus cos theta, तो एक यहाँ पर क्या आया sin theta minus cos theta upon sin theta, ये reciprocal होके हो जाएगा sin theta upon sin theta minus cos theta plus as it is cos theta upon sin theta as it is, here cos theta into 1 cos theta minus sin theta. तो यहाँ पर होगा cos theta minus sin theta upon cos theta and its reciprocal, so multiplied here cos theta upon cos theta minus sin theta. Okay. अब यहाँ पर देखो sin theta into sin theta becomes sin square theta entire upon cos theta into sin theta minus cos theta, क्योंकि हम यहाँ डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर कर लेते हैं, प्लस एज इट इज हियर cos theta into cos theta cos square theta upon sin theta multiplied by cos theta minus sin theta. After that sin square theta here as it is sin square theta upon cos theta into sin theta minus cos theta plus cos square theta as it is, taking minus sign common from this bracket. ये second bracket देख रहे हो यहाँ पर,
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस साइन इज आउट, तो इट दिस विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा इनटू, अब ये टर्म चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हुआ तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस साइन आउट कर लिया तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर से इसको स्टेप बैक करके देखो, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अगेन सेम टर्म कॉस माइनस साइन, यू टेकिंग माइनस साइन कॉमन। अब अगले स्टेप में क्या करना है, हमें देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन बोथ द डिनोमिनेटर्स, तो टेकिंग 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा रिमेनिंग टर्म इन द फर्स्ट पार्ट, एंड हियर प्लस अपॉन माइनस, तो प्लस अपॉन माइनस बिकम्स माइनस, here cos square theta upon sin theta remaining part in the second term. Okay, so see once again, so LHS equal to 1 upon sin theta minus cos theta multiplied by sin square theta upon cos theta minus cos square theta upon sin theta, bracket closed. So it is equal to 1 upon sin theta minus cos theta into, here sin square theta into sin theta, sin cube theta, cos theta into cos square theta, cos cube theta upon cos theta into sin theta here. Now we see that in the numerator here sin theta whole cube minus cos theta whole cube means sin cube theta minus cos cube theta can be written as sin theta whole cube minus cos theta whole cube, the cube of each term. Okay, so using the formula a cube minus b cube, so do you know a cube minus b cube formula? Yes, anyone? Okay, so it is equal to a क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, यहाँ सभी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला नोट कर लेना चाहिए, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स ए माइनस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट इनटू, नाउ सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो सेकंड ब्रैकेट में। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि LHS इक्वल टू दिस पार्ट 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब इन द न्यूमरेटर, सो वी गेट इन द फर्स्ट ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन द सेकंड ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने इसलिए एक साथ में लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1 by identity. Okay, so using 1 upon sin theta minus cos theta, अब ये पार्ट और यहाँ sin theta minus cos theta है, तो they will be cancelled from each other, ये डिवाइड हो गया, क्लियर। तो रिमेनिंग टर्म में क्या आता है, अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, फिर से देख लो ये डिनोमिनेटर और ये ब्रैकेट ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग पार्ट में क्या बचता है, सेकंड ब्रैकेट ओनली, तो सेकंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हियर, आ गया समझ में, तो बिल्कुल समझ में आ गया, क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया है, डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ न्यूमरेटर हैज टू पार्ट्स, वन फर्स्ट पार्ट एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज सेकंड पार्ट, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा सेपरेट कर लेते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखो 1 अपॉन डिनोमिनेटर प्लस साइन इंटू कॉस अपॉन डिनोमिनेटर, तो साइन थीटा इंटू कॉस एंड कॉस थीटा इंटू साइन, देखो कॉस गोइंग बाय कॉस, साइन गोइंग बाय साइन, तो डिवाइड होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। समटाइम्स स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, कभी कभी जीरो लिख करके आ जाते हैं जो रॉन्ग हो जाता है, तो ये कट होने के बाद क्या होगा 1, जैसे भी x अपॉन एक्स, 5 अपॉन 5, 4 अपॉन 4, 1 अपॉन 1 एटसेट्रा, बट नॉट 0 अपॉन 0। ऐसा नहीं सोचना कि सर ने 0 अपॉन 0 एग्जाम्पल नहीं दिया तो मैं 0 अपॉन 0 लिख दूं, नो, 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड टिल टुडे। So 1 upon cos theta into sin theta, देखो 1 upon cos becomes sec and 1 upon sin becomes cosec as a formula, और यहाँ पर sin sin gone, cos cos gone becomes 1, so plus 1. Therefore it can be rewritten as 1 plus sec theta into cosec theta, and this is your right hand side, that is क्वेश्चन का राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना है। तो LHS इक्वल टू
RHS, हेंस प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सोल्यूशन तो इतना बड़ा है तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा, नो। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, देखो सबसे पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले tan एंड cot ये दोनों टर्म को हमने साइन एंड कॉस में कन्वर्ट किया, फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को इक्वल किया, माइनस साइन को कॉमन किया, और लास्ट में जो थर्ड लास्ट स्टेप में है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद कुछ टर्म्स कैंसिल होते हैं और फिर एक आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 है, और यहाँ पर ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाता है जिसको देख सकते हो इजीली। इसके बाद हमें छोटे से फार्मूले यूज करके हमारा राइट हैंड साइड मिल जाता है। सो क्वेश्चन प्रूव्ड हियर। चलो अब लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का ही फोर्थ क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 4, क्योंकि टोटल इसमें 10 क्वेश्चन हैं। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। नाउ प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की खासियत बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को हमारे सभी स्टूडेंट LHS एंड RHS सेपरेटली दोनों को प्रूव करके एक थर्ड क्वांटिटी के इक्वल इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो मोस्टली सभी करते हैं कि LHS को अलग प्रूफ कर लो और RHS को अलग प्रूफ कर लो, दोनों इक्वल आ जाते हैं, हेंस LHS इक्वल टू RHS। लेकिन मैंने जो यहाँ पर सोल्यूशन दिया है वो थोड़ा डिफरेंट सोल्यूशन है। मैंने LHS को स्टार्ट करके RHS को यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया है। ओके, नाउ सी इट्स प्रूफ टेकिंग LHS। सो LHS इक्वल टू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो LHS इक्वल टू 1 प्लस sec a is 1 upon cos a entire upon 1 upon cos a because sec a is 1 upon cos a। अब यहाँ देखो 1 इंटू कॉस ए दैट इज cos a प्लस 1 अपॉन cos a, क्योंकि डिनोमिनेटर तो रहेगा ही, अपॉन 1 अपॉन cos a। क्लियर? तो अब हम अगले स्टेप में इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो cos a प्लस 1 एज इट इज अपॉन cos a, ये हो गया अपना टोटल न्यूमरेटर, cos a प्लस 1 अपॉन cos a मल्टीप्लाइड बाय cos a अपॉन 1। तो अब यहाँ पर देखो cos a गोइंग बाय cos a, तो इट इज इक्वल टू cos, देखो cos a प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos a ऑल्सो, ओके, क्योंकि cos a कैंसल्ड। तो क्या बचता है cos a प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज 1 प्लस cos a अपॉन 1। तो 1 प्लस cos a अपॉन 1 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर 1 minus cos a। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 minus cos a in this term, in this step। तो मल्टीप्लाइंग बाय 1 minus cos a in numerator and denominator, ऐसा लिख लो। तो a plus b into a minus b in the numerator becomes 1 square minus cos a whole square, 1 square is 1 and cos a whole square becomes cos square a upon 1 minus cos a as it is। अब इसको देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को इधर लेके जाना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बिकम्स साइन स्क्वायर ए। तो इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही इजी वे में मैंने इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को LHS टू RHS प्रूफ करने के लिए आ जाएगा। और अगर सेपरेटली प्रूफ करना है और किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें LHS टू LHS सेपरेटली एंड RHS सेपरेटली कैसे प्रूफ करके देखें, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, मीन्स मेन क्वेश्चन इज 5, सब क्वेश्चन इज 5। Prove that cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 equals cosec a plus cot a। तो अब यहाँ पर देखो cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 equals cosec a plus cot of a। तो ये क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर LHS लेना चाहिए, टेकिंग LHS फॉर दिस प्रूफ। To prove LHS equals cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1। सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, cosec a एंड cot a।
तो सबसे पहले हमें सभी टर्म को कोसेक एंड कॉट में एज फार एज पॉसिबल कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये कोसेक एंड कॉट में कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये अच्छी तरह से मालूम है कि कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ऑफ ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, और साइन ए अपॉन साइन ए होता है 1। तो ठीक है, चलो कम से कम हमें कॉट एंड कोसेक के फॉर्म में तो मिल जाएगा। तो क्या करते हैं इसमें, डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच टर्म। तो देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स, अब देखो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, हमने न्यूमरेटर को सभी टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दिया, और सेम कंडीशन इन द डिनोमिनेटर, दैट इज एंटायर अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। अब देखो cos a upon sin a becomes cot a, sin get cancelled becomes -1, here 1 upon sin a becomes cosec a, here cos a upon sin a cot a, sin get cancelled, here it is +1, and 1 upon sin a becomes cosec a, that is minus cosec a here। तो अभी हमें क्वेश्चन तो मिल गया कि cot एंड cosec के फॉर्म में रेडी हो गया। तो अब क्या करना चाहिए, देखो cot a प्लस cosec a, इसको एक साथ में लिख लो स्टार्टिंग में, और यहाँ पर है -1। तो ये 1 को हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए किससे, यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी अपनी है, और ये आइडेंटिटी को जो स्टूडेंट हमारे फॉर्मूला लिस्ट में देखना चाहते हैं उनको प्रीवियस वीडियोज रेफर करना चाहिए, और वो प्रीवियस वीडियोज में फॉर्मूला नंबर 8 है, आइडेंटिटीज जहाँ लिखा है उसमें 6, 7, 8 है, तो 8th वन लास्ट वन देखेंगे तो ये फॉर्मूला दिखेगा, वहाँ पर लिखा गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और उसी में थर्ड स्टेप में है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्योंकि ट्रांसफर कर लोगे वहाँ पर। तो ये 1, तो हम लोग यहाँ से देखें ना इसको, 1 की वैल्यू क्या है, हमें कोसेक और कॉट में लिखना है। तो देखो फिर से देख लो, कॉट ए प्लस कोसेक ए फर्स्ट टू टर्म्स -1, तो 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 1 इक्वल्स कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर नोट कर लो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं किया मैंने, कोई भी चेंज नहीं है, तो अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ओके, क्योंकि ये आइडेंटिटी है इसको यहाँ पर लिखना कंपलसरी है। नाउ कॉट ए प्लस कोसेक ए इन 1 ब्रैकेट माइनस, अब ये तो सभी को पता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आ गया, तो हमने इसको 1 से कन्वर्ट करके लिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन सेम डिनोमिनेटर, देखो कोई भी हमने चेंज नहीं किया डिनोमिनेटर में, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट को कि 1 को सिर्फ न्यूमरेटर में ही चेंज करना है, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ओनली फॉर न्यूमरेटर, नॉट इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में भी चेंज कर दोगे तो फिर जो हमें प्रूफ करना है वहां तक नहीं पहुंचेंगे। नाउ सी द न्यूमरेटर, देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, इट इज ऑल्सो कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो टेकिंग कॉमन, तो LHS इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए इन द फर्स्ट ब्रैकेट कॉमन इनटू, क्योंकि ये कॉमन कर लिए तो यहाँ पर 1 तो रिमेनिंग रहेगा ना, 1 जा, दैट इज 1 माइनस, ये माइनस साइन एज इट इज, कोसेक ए माइनस कॉट ए हियर एज इट इज अपॉन, अब यहाँ देखो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, उसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया, बाकी कुछ नहीं, सेम डिनोमिनेटर है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को सिर्फ ओपन कर दो, तो LHS इक्वल्स कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कोसेक ए, and here minus into minus becomes plus, that is plus cot a upon, again rearrange the denominator, है वही चीज, सिर्फ उसको अरेंज करके दूसरे फॉर्म में लिखा कि 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, देखो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए इधर से लिख दिया, तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ देखो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, और 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो बोथ द ब्रैकेट्स आर कैंसल्ड, डिवाइड हो गया, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 बिकम्स सेम इक्वल्स कोसेक ए प्लस कॉट ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट को आज के 5 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़
Subscribe the channel and share the channel link to your friends. And one more suggestion for the students कि कोई भी अगर आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रूव करते हो तो उस वीडियो को एटलीस्ट ट्वाइस पूरा बहुत ही केयरफुली सुनना है, वॉच करना है और उसको देख देख कर प्रैक्टिस करना है। फिर थर्ड राउंड से बिना देखे उसको प्रैक्टिस करके फिर से कंपेयर करके देखो कि हमारे प्रूफ के सभी स्टेप्स बराबर हैं क्या। ओके, थैंक यू।